शीतल माता जी, आप श्लोका पढ़ पाओगे? वुड यू लाइक टू रीड द श्लोका? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नहीं जी। पढ़िए, श्लोका पढ़िए। Okay, translation and purport by Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada. Arjuna said, "O Krishna, first of all you asked me to renounce work, and then again you recommended work with devotion. Now will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial?" तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं, पहले आपने बोला जस्ट रिनाउंस योर वर्क, अपने कार्य को त्यागो, और बाद में यू रिकमेंडेड कि अपने कार्य को करो मगर डिवोशन के साथ में। तो अब आप मुझे ये बताओ, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है? सो विल रीड द पर्पस, देन आई एक्सप्लेन अबाउट इट। ठीक है। In the fifth chapter of Bhagavad Gita, the Lord says that work in devotional service is better than dry mental speculation. Devotional service is easier than later because being transcendental in nature, it frees one from reaction. In the second chapter, preliminary knowledge of the soul and its entanglement in the material body were explained. How to get out of this material engagement by Buddhi Yoga or devotional service was also explained therein. In the third chapter, it was explained that a person who is situated on the platform of knowledge no longer has any duties to perform. And in the fourth chapter, the Lord told Arjuna that all kinds of sacrificial work culminate in knowledge. However, at the end of the fourth chapter, the Lord advised Arjuna to wake up and fight, being situated in perfect knowledge. Therefore, by simultaneously stressing the importance of both work and devotion and in action in knowledge, Krishna has perplexed Arjuna and confused his determination. Arjuna understands that renunciation and knowledge involves cessation of all kinds of work performed as sense activities. But if one performs work in devotional service, then how is work stopped? In other words, he thinks that sannyas or renunciation and knowledge should be altogether free from all kinds of activity because work and renunciation appear to him to be incompatible. He appears not to have understood that work in full knowledge is non-reactive and is therefore the same as inaction. He inquires therefore whether he should cease work altogether or work with full knowledge. So, यहाँ पे जैसे हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, वी अंडरस्टैंड द सोल, और ये भी पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू वंस कर्मा जो सोल है उसको डिफरेंट बॉडी मिलता है। ठीक है। So according to different action and reaction, the soul gets the different body. ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि the Lord says कि work in devotional service is better than dry mental speculation. ये हम लोग अभी फिफ्थ चैप्टर में will study more in detail कि जो क्या है, जो भक्ति योगा में जो कार्य होता है वो मेंटल स्पेकुलेशन, जो हम अपने मन से कुछ ही बातें बनाते हैं, उससे ज्यादा प्रेफरेबल है यहाँ पे। और ये भी हम लोगों ने देखा है कि when we act in devotional service, the act is not under the mode or not counted as karma. It is the ट्रांसडेंटल में होता है तो इसका एक्शन रिएक्शन नहीं होता है। जैसे सबसे सरल उदाहरण है हमारे भोजन की, जब खाना हम पाते हैं, प्रसाद हम लेते हैं, वो हमने भगवान को ऑफर किया होता है तो उसको हमें कर्मा नहीं लगता है। अदरवाइज अब जैसे बोले जाते हैं, लोग कहते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए तो हमें सिर्फ वेजिटेरियन खाना, मतलब नॉनवेज अगर आप खाते हो तो आप जानवर को मारते हो, तो वेजिटेरियन भी तो आप पेड़ पौधों को मार ही रहे हो। हाँ, हम उनको मार के खा रहे हैं। और ये भी सत्य है कि जीव जीवस्य जीवनम, कि एक जीव दूसरी जीवात्मा का भोजन होता है। मगर भगवान ने हमें फल फ्रूट लेने को कहा है ना, जो पेड़ों से आता है वेजिटेरियन फूड। बट वेजिटेरियन भी फूड अगर हम भगवान को नहीं ऑफर करते हैं पहले लेने से पहले, तो वो भी कर्मा क्रिएट करता है। ठीक है, उसका भी एक्शन रिएक्शन रहता ही है, वो भी कर्मा है। ठीक है। बट जब हम भगवान को देते हैं, भगवान क्योंकि कर्म से परे है ना, उनको कोई कर्म नहीं होता, तो जब उनको भगवान भोग लगाते हैं तो वो जो भोग है वो उनकी पोटेंसी से ट्रांसडेंटल हो जाता है। वो जस्ट नॉट अ फूड बट इट बिकम्स ट्रांसडेंटल फूड, इट इज प्रसादम, क्यों भगवान द्वारा ग्लांस किया होता है या उनके द्वारा आस्वादन उसका किया जाता है, तो जिसकी वजह से वो क्या है, कर्मा फ्री होता है।
So the Krishna conscious devotee are taking karma free diet. ठीक है, तो हमारा जो प्रसाद है वो वेजिटेरियन नहीं है, वो कृष्णाटेरियन है. The food we take, so it is free from all action and reaction. So this is how devotional service works. ये devotional service है ना, भोग बना के भगवान को ऑफर करना और उसको पाना. So this is devotional service. So devotional service frees one from all the reaction. तो इसलिए हमारे जितने भी कार्य हैं हमें डिवोशनल वे में करने चाहिए. We should perform in Krishna conscious way that उसका कोई एक्शन रिएक्शन ना हो. सो सेकंड चैप्टर में जैसे मैं बता चुकी हूँ एक्शन रिएक्शन, सो उससे कैसे परे हटना है, डिवोशनल सर्विस से. ठीक है, एक्शन रिएक्शन से कैसे परे हट सकते हैं हम लोग, एक्शन रिएक्शन से. थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि पर्सन हु इज सिचुएटेड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज नो लॉन्गर हैज एनी ड्यूटीज टू परफॉर्म. कि जो व्यक्ति ज्ञान में है उसको कोई और कार्य करने की जरूरत नहीं है. ज्ञान में मतलब ही इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू एनीवन. ठीक है, means knowledge in the sense knowing that I am the servant, Krishna is the master, I have to do everything for the service of Krishna. But he is not obliged to perform any other duty. The prime duty is to serve Krishna. Fourth chapter में Krishna says that Arjuna, all kinds of sacrificial works culminate in knowledge. कि जिसको ज्ञान है वो मतलब सारे कार्य कृष्ण भावनामृत में करेगा. ठीक है, भगवान ने उसको बोला भी, अर्जुन को बोला कि at the end wake up and fight. ठीक है, this is perfect knowledge. And simultaneously stress किया the importance of both work in devotion and in action in knowledge. Work in devotion, अर्जुन को लगा कि रिनाउंसिएशन की बात हो रही है, तो रिनाउंसिएशन जनरली जब भी हम सुनते हैं इस टर्म को, फिर कम टू नो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के तो जंगल चले जाना. ठीक है, दैट व्हाट द रिनाउंसिएशन कम ब्रिंग द. जब भी हम रिनाउंसिएशन का टर्म सुनते हैं तो यही चीज हमारे दिमाग में आता है. क्या दिमाग में आता है? रिनाउंसिएशन मीन्स टू लीव एवरीथिंग, कुछ कार्य नहीं करना है, सिर्फ जंगल जाके तो बस हरि नाम करते रहो. नो, प्रभुपाद ने ऐसा नहीं बताया हमें. ठीक है, द रियल रिनाउंसिएशन इज मीन दैट एवरीथिंग इज यूटिलाइज्ड इन कृष्णा सर्विस. दैट इज रिनाउंसिएशन. कि कोई भी चीज हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की सेवा के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे एक भक्त है वो भी जॉब करता है, जो कर्मी व्यक्ति है वो भी जॉब करता है. ठीक है, दोनों जॉब कर रहे हैं ना. जैसे एक ही कंपनी में दो व्यक्ति है, एक डिवोशनल में है, डिवोशन में है, भक्ति कर रहा है, और एक व्यक्ति डिवोशन में नहीं है. ठीक है, अब बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं ना. बोथ आर वर्किंग एंड दैट इज मटीरियल वर्क. कोई कृष्णा कॉन्शियस वर्क तो है नहीं वहां पे. फैक्ट्रीज में कोई कृष्णा कॉन्शियस कार्य होता है? नो, इट्स नॉर्मल जो मैन्युफैक्चर कुछ भी काम है, दैट इज कर्मा ओनली. बट द थिंग इज उसका जो एंड रिजल्ट है और चेतना कैसी है वो डिपेंड करती है. अब जो भक्त होगा वो इसलिए जा रहा है कि जो भी मेरा इससे जो अर्निंग होगा आई विल बी यूटिलाइजिंग इन कृष्णा सर्विस. कि हमारे घर में इस पैसे से जो खाना आता है वो भगवान की सेवा में लगता है. ठीक है, वो भोग है जो भगवान की सेवा में खाने के लिए हम मतलब वी आर अर्निंग टू हैव अ नाइस फूड, इजंट इट? सो नाइस फूड, वही खाना हम भगवान को लगाते हैं. तो वो आपका जो अर्न है ना, जो लक्ष्मी है, जो कार्मिक लक्ष्मी है, दैट इज यूज्ड इन कृष्णा सर्विस. और वही लक्ष्मी व्हेन यू डोनेट समथिंग इन टेंपल और आइदर हेल्प इन प्रीचिंग प्रोग्राम्स और मे बी भक्तों को चैरिटी में देते हैं कुछ लक्ष्मी, या अपने घर में ही कुछ प्रोग्राम करवाते हैं या कीर्तन के बुलाते हैं. सो दैट्स हाउ यू यूटिलाइज योर लक्ष्मी इन डिवोशनल वे. ठीक है, तो उसको आप डिवोशनल वे में यूज कर पाते हैं. सो दैट बिकम्स कृष्णा कॉन्शियस. लाइक देयर इज अ वन एग्जांपल आई कैन गिव कि जैसे 3 व्यक्ति हैं, सपोज वो लोग टेम्पल बिल्डअप कर रहे हैं, मतलब लेबर है, वो टेम्पल की बिल्डिंग बना रहे हैं. ठीक है, टेम्पल बना रहे हैं, मतलब दे आर मेकिंग द टेम्पल. फर्स्ट व्यक्ति को पूछा, भाई व्हाट आर यू डूइंग? तो यू आर सेइंग दिख नहीं रहा, ईंटेड हो रहा हूं मैं. तो लाइक ओके, ये उसकी चेतना, ईंटेड होनी है मुझे. दूसरे व्यक्ति से पूछा, थोड़ा बेटर था इसलिए, हाँ वी आर बिल्डिंग अ टेम्पल. पर चेतना क्या है, वही काम खत्म करना है किसी तरीके से. तीसरे व्यक्ति को लगा, इज वेरी ब्लिसफुल. व्हाई इज ब्लिसफुल? ही सेज, ओह आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क. मींस कि ऐसा अपने लेबर का काम तो करता है, मगर आज तो भाग्य खुल गया कि आज भगवान का मंदिर निर्माण करने के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ. सो हिज चेतना इज फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड. He is very blissful because he is taking his work in the service of Lord. He is thinking कि नहीं, ये तो भगवान की सेवा का मौका मिला तो उसके लिए कार्य हो रहा है. He is very blissful. दो तीनों वर्कर एक ही काम कर रहे हैं, ईंटेड होने का, बाकी काम करने का, मगर तीनों की चेतना में अंतर है ना. तीसरे व्यक्ति की चेतना क्या है, भगवान की सेवा के लिए, उनका मंदिर निर्माण हो रहा है तो आज मौका मिला तो उनकी सेवा का कार्य कर रहा हूँ. ठीक है, so this is how it matters. The consciousness matters a lot. So this is renunciation because he is not doing it for enjoyment. ठीक है, कि ये नहीं देख रहा कि हाँ इंटर होगा तो पैसे मिलेंगे, अपनी इंद्रिय तृप्ति होगी. नो, ही इज सेइंग आई एम डूइंग इट फॉर लॉर्ड सर्विस. अर्निंग मिलेगा तो ही विल बी यूटिलाइजिंग ऑब्वियसली इन कृष्णा कॉन्शियस वे. सो दैट इज द कॉन्शियसनेस डिफरेंस. सो रिनंसिएशन डजंट मीन जस्ट लीव एवरीथिंग एंड गो अहेड. नो,
हमारे इस्कॉन में द प्रभुपाद हैज टॉट अस कि इवन गृहस्थ, इसका मतलब फिर तो भक्ति सिर्फ ब्रह्मचारी कर सकते हैं ना, जो मंदिर में रहते हैं। तो सन्यासी और फिर ब्रह्मचारी कर सकते हैं, इसका मतलब भक्ति करने तो हमें ब्रह्मचारी और सन्यासी बनना पड़ेगा? Not at all. Being a grihastha, being at home also, one can do bhakti or engage in devotional service very nicely. Just have to add Krishna in our life. ठीक है, जैसे भक्त लोग हैं, घर में हैं, गृहस्थ लोग हैं, तो मॉर्निंग में जैसे हमारा मंगल आरती प्रोग्राम होता है, ये जब करते हैं तो सारे घर वाले इकट्ठे आरती करते हैं, जब करते हैं, भगवान को भोग लगता है, फिर सभी अपने अपने कार्य में जाते हैं, वर्क प्लेसेस में जाते हैं, तो वहां पे भी प्रयास करते हैं लोगों को इन चीजों के बारे में बताने का। और whatever the earning they get, they use in Krishna conscious way. सब भक्त हैं तो सबके लिए यूज हो रहा है, नीड्स के लिए, so that is there. And it's like devotees doesn't इतना हार्ड एंडेवर नहीं करते सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए, they try to engage more of their time in devotional activities. So like that way in Grihastha also one can do very nicely. घर में प्रसाद मिल रहा है, शाम को आके थोड़ा सा कीर्तन होता है, जैसे आजकल कार्तिक खत्म होने वाला है, आज सेकंड लास्ट डे है, कल लास्ट डे है कार्तिक का, so everybody in the evening do the दीपदान, घर वाले आते हैं शाम को कीर्तन करते हैं, दीपदान करते हैं. This is devotional. Your whole atmosphere of the home has become devotional. Means 4 आश्रम होते हैं ना, आश्रम का मतलब होता है नो क्षमा. क्षमा मीन्स क्षमा एव ही केवलम. क्षमा मतलब होता है हार्ड लेबर, ठीक है. तो मगर भक्तों के घर में उनका जो आश्रम है, अक्षमा मीन्स नो क्षमा, क्षमा मीन्स हार्ड लेबर. मगर भक्तों में हार्ड लेबर नहीं होता है. The hard labor they do, they use it in Krishna consciousness. So renunciation doesn't mean to leave things aside, but utilizing everything in Krishna's service. Like this laptop is there, I'm using right now for studying this Bhagavad Gita with all of you. So this is used in Krishna conscious way. Obviously, मैं इसमें अपना ऑफिस का काम भी करती हूँ. I do my other work also on this laptop. But अगर कोई जैसे मायावादी बोलते हैं ये सब माया है, छोड़ देना चाहिए हमें. No. Even the mobile is very nicely used in Krishna service because you are in touch with the devotees. You are using it for preaching purpose. अब लोग Facebook या सोशल मीडिया है, उसका भी इस्तेमाल प्रचार कार्य के लिए कर रहे हैं. अभी कितने लोग हैं, उन्होंने मतलब ड्यू टू द कोविड द प्रीचिंग हैज एक्सपेंडेड लाइक एनीथिंग. आप ऑनलाइन देखिए, हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है ऑनलाइन, भगवद गीता, भागवतम, so many studies of preaching is going on. So people are utilizing this internet in Krishna service. प्रभुपाद ने बोला था जैसे डिक्टाफोन होता है, डिक्टाफोन इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस, है ना. तो कोई अगर देखे तो एक सन्यासी का उस डिक्टाफोन से क्या काम है, वो तो सन्यासी, उनको क्या करना है डिक्टाफोन का. बट प्रभुपाद इज यूजिंग इन कृष्णा सर्विस, यूजिंग द डिक्टाफोन टू रिकॉर्ड द लेक्चर, सो दैट अभी प्रभुपाद ने रिकॉर्ड किए तो आज हम लोग सुन पा रहे हैं उस चीज को. अगर वो रिकॉर्डेड नहीं होते, हम कहाँ प्रभुपाद को सुन पाते कि क्या उन्होंने कहा है. सो एवरीथिंग कैन बी यूज्ड इन, डिवोटी इज वेरी एक्सपर्ट टू यूटिलाइज एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस. तो हर चीज का भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना जानता है. सो दैट इज रियल रिनंसिएशन. ठीक है, रिनंसिएशन डजंट मीन जस्ट लीव एवरीथिंग. नो, त्याग रिनंसिएशन नहीं है. त्याग किस चीज का करना है? इंद्र तृप्ति का करना है. वी हैव टू अंडरस्टैंड culminate knowledge means to understand I am servant of Krishna and everything should be utilized in the service of Krishna. So that is real knowledge and that is real renunciation कि हर चीज का भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो. ये नहीं कंसिडर करना इट्स माया, लीव इट बिहाइंड. नो. Even your family members are not Maya. You can use the, you can like bring them to Krishna consciousness and nicely engage in Krishna consciousness. So that is true understanding. ठीक है, renunciation doesn't mean just leave everything. That's why Arjuna was a little confused here. कि what to do. पहले तो बोला renunciate करो, अब बोल रहे हो कि लड़ाई करो. तो लड़ाई क्यों करनी? Because it's Krishna's will. भगवान स्वयं चाहते हैं अर्जुन को कि लड़ाई करो, मतलब भगवान खुद कह रहे हैं लड़ाई करो. So why Arjuna has to say no? And it is not karma, because that is for the establishment of dharma, and being a kshatriya it is responsibility to protect the dharma. ये अपनी ड्यूटी है ना. तो वही मैं बता रही कि गृहस्थ को अपनी ड्यूटीज छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है. There are your kids, take care of them. There is your wife, take care of them. अगर चेतना कैसी होनी चाहिए? They are all by Krishna's grace, we all souls have come together. So let us nicely engage in devotional service and let us all go back, qualify ourselves to go back to Godhead. जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहा करते थे कि जो मेरा घर है वो मतलब भगवान का ही आश्रम है. मीन्स द ऑल फैमिली मेंबर्स आर नॉट माइन, दे ऑल बिलोंग टू कृष्णा. एंड सीइंग देम इन दैट वे आई एम सर्विंग देम वेरी नाइसली सो दैट दे ऑल कैन be engaged nicely in Krishna service and can go back to Godhead in this very lifetime, cutting the cycle of birth, death, old age and disease. So this is by Krishna's grace we all come together. So we have to nicely engage in service. Okay, not considering them as Maya. So Krishna is saying being in Kshatriya, it's your duty. So we don't have to leave our duties also.
ठीक है, बट द प्राइम ड्यूटी इज टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, ठीक है। सेकेंडरी ड्यूटी आती है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिली, किड्स, वर्क, होम, ऑल दोस थिंग्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ, बट मोल्ड योर एक्टिविटी इन सच अ वे दैट एवरीथिंग इज कृष्णा कॉन्शियस, ठीक है। और कुछ भी गड़बड़ तो है नहीं, जिसमें मैंने खाने का ही बताया, भगवान को भोग लगाओ, इट्स कृष्णा कॉन्शियस, isn't it? Your earning is there, use in some service, so उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल कीजिए। So like that way we can utilize everything in Krishna in a devotional way, ठीक है। So that's what it in this first verse, ठीक है। So we'll be moving, okay, so we'll be moving in the next word, next verse। और inaction का मतलब है कि inaction मतलब होता है कुछ भी काम ना करना, ठीक है। कुछ भी काम ना करना मतलब don't perform any sense gratificatory activity। inaction in knowledge मतलब inaction टर्म का मतलब होता है कि कर्म ना करना। कई लोग कहते हैं कि अगर मैं कुछ कार्य नहीं करूंगा तो मुझे कर्म लगेगा कैसे, बट बैठ के भी यू आर टेकिंग, आप सांसें ले रहे हो ना, सांस लेते लेते भी कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जम्स मर जाते हैं। आप चलते हो, आपके पाँव के नीचे कितनी चींटियां मकोड़े मर जाते हैं, तो उसका कर्मा नहीं लगेगा, आपको लगेगा ना। यू कैन नेवर, इनएक्शन भी एक तरह का पाप ही है, वी हैव टू वर्क, क्योंकि बाय नेचर वी आर एक्टिव, सोल बाय नेचर एक्टिव होती है, तो कुछ ना कुछ कार्य है। मगर इन एक्शन इन नॉलेज मतलब उसका क्या मतलब होता है, ज्ञान में कार्य ना करना मतलब डोंट परफॉर्म एनी सेंस ग्रेटिफिकेटरी एक्टिविटी, कि कोई इंद्र तृप्ति लायक कार्य नहीं करना है या कोई एक्सप्लोटेटिव कार्य नहीं करना है, दैट इज इन एक्शन इन नॉलेज, ठीक है। और अदर वर्क इन फुल नॉलेज मीन एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, और उसका डिटेल वी विल स्टडी इन दिस होल चैप्टर रिगार्डिंग द कर्म योगा। So this chapter entitled Karma Yoga means Karma Yoga third chapter भी था, this is also the Karma Yoga, but this directly talks about how to work in Krishna consciousness, ठीक। So we'll move to the next shloka। इस श्लोका में किसी को कोई डाउट है या anybody would like to add up some points so they can? Yes, Asa, would you like to add up some points in this verse if you have something in your mind, or maybe I can move on to the next? माता जी सॉरी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो आप थोड़ा मतलब ट्रांसलेशन एक बार समझा दीजिए। Did you heard something? You heard something from the class? हाँ, वो लास्ट का सुनो माता जी कि रिनाउंसिएशन वो नहीं है, वो वाला पार्ट सुनना है। Okay, anyone else would like to add up something? कोई किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस वर्स में, और then we will be moving to the next. Okay, we'll move to the next shloka then. माता जी मैं बोल रही थी कि ट्रांसलेशन समझा दीजिए ना। ट्रांसलेशन समझाओ, क्यों आपको समझ नहीं, मैंने भी पढ़ी नहीं है उसको। I didn't study the translation. Actually, Arjuna just put the question, what is good? He means I should be like renouncing, means the work, to renounce my work or work in Krishna consciousness. So which is better? So that is what Arjuna's question. तो उसी का आंसर भगवान यहाँ पे देंगे, ठीक है। Okay, so this is what the question was. Question से start हुआ answer. So the answer we are going to study it. Okay. Maybe you can just read it out, the translation, it will be clear to you. Okay, the next shloka. Shri Bhagavan uvacha sannyasa karma yogascha nishesa kar ubhav tayostu karma sannyasa karma yoga vishishyate. Once again. आप लोगों का आवाज क्लियर आ रहा है? डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा है बैकग्राउंड से? एक्चुअली बाहर थोड़ा काम लगा हुआ है, तो इट माइट बी द नॉइज इज हियर। यू ऑल पीपल आर एबल टू हियर क्लियरली? आप लोग सुन पा रहे हो ना अच्छे से? यस यस माता जी। एक्चुअली मेरे को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बिकॉज़ बाहर एक्चुअली काम लग रहा था, इट इज लाइक द प्रॉब्लम, नॉइज इज कमिंग। ओके, ट्रांसलेशन। नाउ व्हाट कृष्णा इज आंसरिंग टू अर्जुना। अब भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं, the personality of Godhead replied, the renunciation of work and walk in devotion are both good for liberation. कि renunciation of work मतलब कार्य का त्याग, और work and devotion both are good for liberation. But of the two, work in devotional service is better than renunciation of work. कई लोग अपने कार्य छोड़ के सिर्फ भक्ति में लग जाते हैं ना, एक तो वो हो गया renunciation work, और work and devotion भगवान कह रहे हैं दोनों सही है, दोनों liberation के लिए अच्छा है।
मगर दोनों में से बेटर कौन सा है? वर्क इन डिवोशनल सर्विस, ठीक है। सो दिस इज मोर बेटर देन रिनंसिएशन ऑफ वर्क। सो पापा इसको बता रहे हैं यहाँ पे, फ्रूटिव एक्टिविटीज सीकिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन आर कॉज फॉर मटेरियल बॉन्डेज, ठीक है। फ्रूटिव एक्टिविटीज मतलब हम लोग फ्रूट्स की अपेक्षा करते हैं, ठीक है, फल की इच्छा ना, कि हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो वी लुक फॉर द फ्रूट्स। सो दैट इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज बिकॉज वी गॉट अटैच्ड टू दोस फ्रूट्स, कि अच्छा मैंने ये किया मुझे ये मिलेगा, आई गेट टू एंजॉय, तो एंजॉइंग टेंडेंसी आ जाती है ना, बट एक्चुअली वी आर नॉट द एंजॉयर। हु इज द एंजॉयर? in this chapter only, in the 29th shloka, Krishna says, what was that? Bhoktaram yagatapsam sarvalokam maheshwaram. So Krishna says, I am the supreme enjoyer. Krishna कौन कह रहे हैं? I am the enjoyer. Krishna says, I am the enjoyer. मगर जब हम ये fruits की अपेक्षा करते हैं ना, so that somewhere we want to enjoy, and when we want to enjoy, then it's a cause of bondage. क्योंकि we are not meant to enjoy. We are meant to be enjoyed by Krishna. So that is there, वो इंद्र तृप्ति आ जाती है कहीं ना कहीं जब हम लोग फल की अपेक्षा करते हैं, we want to enjoy our senses. So that is cause of material bondage, ठीक है। As long as one is engaged in activities aims at improving the standards of bodily comfort, one is sure to transmigrate to different types of bodies, thereby continuing material bondage perpetually. ये लाइन स्टेटमेंट जरा ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है। As long as one is engaged in activities aimed at improving the standard of bodily comfort, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑफ बॉडीली कंफर्ट मींस अगर देखा जाए तो आपकी बॉडी कंफर्ट के लिए व्हाट यू नीडेड, यू नीड अ नाइस क्लोथिंग सो दैट यू कैन कवर योर बॉडी नाइसली, एंड you need like food to have nice health, isn't it? So these are the bodily needs, isn't it? Body needs यही होता है ना, एक प्रॉपर खाना मिल जाए कि हमारी बॉडी फिट रहे, और we have the proper clothing, ठीक है, और प्रॉपर shelter will be there, so that is bodily comfort, ठीक है। मगर लोग they work so well so that they can, I mean standard of bodily comfort means so much nice cosmetics they can have, and so much they can spend on their body to look good. Oh, this is my hairstyle, this is how the new dress I'm wearing. We should look for the need, not just go beyond the need. जितना जरूरत है उतना लेना चाहिए. That's the purpose is simple living and high thinking. That we should have the simple living. हमारी जो सोच है वो higher purpose के लिए रहना चाहिए. How I can be more Krishna conscious? Like I'll give you the example. जैसे आई थिंक एक पिक्चर है भागवतम में ही, आप लोगों ने शायद वो देखा होगा, जिसमें एक व्यक्ति पेड़ से लटका हुआ होता है, ठीक है, और एक साइड से ऊपर से मतलब ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है, वहां से थोड़ा थोड़ा शहद गिर रहा है, नीचे हाथी उस पेड़ को धक्का मार रहा है, और उस पेड़ की टहनी पे जहाँ पे वो व्यक्ति लटका है वहां पे सांप भी है, ठीक है, वो इज जस्ट कमिंग टूवर्ड्स हिम, और जो चूहा है वो उसके हाथ पे बार बार बाइट कर रहा है, और नीचे जहाँ वो लटका हुआ व्यक्ति उसके नीचे कुआं है, ठीक है। एंड इतना डिफिकल्ट सिचुएशन है भाई यहाँ पे। अब बताओ, सारी चारों तरफ से क्या है, मुसीबत है, नीचे कुआं है, ठीक है, ऊपर मधुमक्खी का छत्ता हिल गया तो सारी मधुमक्खियां काटेंगी, यहाँ से चूहा हाथ पे काट रहा है, यहाँ पे सांप भी है, ही कैन कम एंड कैन बाइट मी, एंड देयर इज अ नीचे हाथी है जो उस पेड़ को धक्का मार रहा है, तो कभी भी ही कैन डाई एनी टाइम, मतलब चारों तरफ से मुसीबत है। बट अब उस सिचुएशन में भी देयर इज सम हनी कमिंग फ्रॉम अपसाइड, उस शहद के छत्ते से क्या मधुमक्खी के छत्ते से शहद गिर रहा है, और व्यक्ति क्या कर रहा है वहां पे, ही इज लिकिंग दैट हनी एंड ही इज ट्राइंग टू एंजॉय, ठीक है। अब वही चीज हमारी है, हम लोग, इट सेज द हाउस इज ऑन फायर, सो हमारा तभी हम लोग सुबह वो प्रेयर गाते हैं ना, संसार धावा नललीढ़ा लोका, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ऑन फायर, आवर हाउस इज ऑन फायर। अब घर में आग लगी है और आप सोच रहे हो कि मैं अच्छा कैसे दिखूं, हाउ आई कैन हैव मोर कंफर्टेबल बॉडी इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है। एट दैट टाइम व्हाट यू थिंक, मेन प्रॉब्लम वहां पे क्या है, मुझे इस जलते हुए घर से बाहर निकलना है, रेदर देन जस्ट बी हियर एंड लुक गुड, ओ हाउ गुड आई एम लुकिंग, नो, दिस इज ऑल फुलिशनेस, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि आप बार बार अपनी इन भौतिक इच्छाओं की वजह से to enjoy the material nature, you are coming again and again and again and again in this material world, maybe in different bodies, sometime in animal, sometime dog, hog, worm, human, not all the time you are coming in human form, it's very rare to get a human form. So जैसे 84 लाख जोनियां बताई जाती हैं, तो you are just migrating from one body to another like swing the tube, same thing again and again coming to one mother's womb. वो कोई भी मदर हो सकती है, it can be human or it can be any animal womb, you are again and again coming,
and that will keep you entangled in this material world. When we are on the bodily consciousness, bodily platform, then we remain entangled in this material world. Bodily platform matlab I just look for this body, how comfortable I am, what is my status in society, see I am such and such big person. So this is I, me and mine के around जब हम रहते हैं, it keeps us entangled because our desires and consciousness is centered around us. सारी चीजें हमारे centered around होती है. So that's create a problem. ठीक है? Sorry. So that keeps us here in the material world. जैसे भागवतम है, ये मेरा favorite chapter है. कुलशेखर की prayers हैं. No, कुलशेखर ने ऋषभ देव की teachings है इसमें. This is 5th canto 5th chapter. This is my favorite chapter. And whole भागवतम ये मेरा काफी favorite है because it's totally talks about the material world in a very enlightening way. It says नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्मा यद् इन्द्रियापृतया आपृणोति नासा धूमन्यत आत्मनो यं वशन् अपि क्लेशदत् आशदेह पराभावस्तवत् अबोधजातो यवन्नाजिष्णास्त आत्मतत्त्वं यवत् क्रियस्तवत् इदं मनो वे कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध इवं मनः कर्म विषं प्रयुक्ते अविद्यात्मनि उपधायमाने प्रीतिर्न यवन्मयि वसुदेवे नामुच्यते देह योगेन त्वत्. क्या बोला है? People are mad after sense gratification and they do not know that this present body, which is full of miseries, is a result of one's fruitive activities in the past. People are mad after sense gratification and they do not know that this present body, which is full of miseries, is a result of one's fruitive activities in the past. कि हमारी जो अगला जन्म है या अगला शरीर जो भी हमें मिलता है वो हमारे कर्म होते हैं पिछले जन्म के. इस जन्म में the whatever body we have acquired, this is all the previous life. ठीक है? So ये previous life है हमारा. ठीक है? previous कर्मों के अनुसार ही we are getting this body. Some are beautiful, some are ugly, some are intelligent, some are dumb, some are rich, some are poor. So it's all our own acts. इसमें भगवान को दोष देने की बात नहीं है ना. कई लोग कहते हैं हमारे घर में गरीबी आनी थी, मैं ही मिला था, मेरे साथ ही सारे बुरे कर्म होने थे. भाई इसमें भगवान को दोष देने की बात नहीं है माता जी. प्रभु जी आपके पिछले खुद के कर्म है ये. This is all your action that you are in this situation right now. So we are nobody to blame God. This is because these are own acts that we create. What kind of body we are getting, it's all our own action. ठीक है? वो हमारे खुद के actions ही हैं हमें कैसा body मिलता है. So it's not someone is responsible for that. No, this is our own act. So be intelligent, take up this process if you don't want to get into this entanglement. ठीक है? So क्या बोला है? Although this body is temporary, it is always giving one trouble in many ways. Therefore, to act for sense gratification is not good. One is considered to be a failure in life as long as he makes no inquiry about his real identity. As long as he does not know his real identity, he has to work for fruitive results for sense gratification. And as long as one is engrossed in the consciousness of sense gratification, one has to transmigrate from one body to another. Although the mind may be engrossed in fruitive activities and influenced by ignorance, one must develop a love for devotional service to Vasudeva. Only then one can have the opportunity to get out of the bondage of material existence. क्या बोला है? To act for sense gratificatory is not good. One is considered to be a failure in life as long as he makes no inquiry about his real identity. कोई भी व्यक्ति, one is considered to be a failure in life. जब तक फेलियर आपकी सक्सेस भौतिक जगत में कुछ मिलना अचीव करना उससे नहीं है. फेलियर ये है जब तक आप अपने बारे में इंक्वायर नहीं करते हो. वन शुड से आते तो ब्रह्म जिज्ञासा, वन शुड इंक्वायर. और किस तरह की क्या लेवल का इंक्वायरी है, दैट शोज हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर. एंड द इंटेलिजेंट इंक्वायरी इज व्हेन वन इंक्वायर हु आई एम, what is the purpose of my life, what I want to do, why I am here, and what is my relation with God. जब हम ये जिज्ञासा रखते हैं उस व्यक्ति को इंटेलिजेंस कहा जाता है. एंड दैट इज द सक्सेस, दैट इज वेयर द बिगनिंग स्टार्ट, यू नो, वेयर द सेल्फ रियलाइजेशन का बिगनिंग होता है. So as long as he does not know his real identity, he has to work for fruitive result for sanctification. So जब तक इंसान अपना रियल स्वरूप नहीं जानता है, अपनी आइडेंटिटी को नहीं पहचानता है, वो क्या है, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियसनेस में ना, तो बॉडी को ही सेटिस्फाई करने में लगेगा, तो he will be engaged in self gratification. ठीक है?
So as long as one is engrossed in this consciousness of sense gratification, one has to transmigrate from one body to another. तो जब तक वो इस चेतना में रहेगा तो उसको एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना ही पड़ेगा. So punarapi janana, punarapi marana, again and again. So although the mind may be engrossed in fruitive activities and influenced by ignorance, one must develop a love for devotional service to Vasudev. कहा जाता है कि मे भी हमारा मन भौतिक कार्यों में लगा है और जो हम एक मोड ऑफ इग्नोरेंस से इन्फ्लुएंस भी हैं, but we have to develop somehow or other we should develop devotional service to Vasudev. Only then can have the opportunity to get out of the bondage of material existence. तो डिवोशनल सर्विस में जब तक हम नहीं आएंगे तब तक कोई चांस नहीं है हमारा इस इंटेंगलमेंट से बाहर निकलने का. There is only one way by which we can come out of this entanglement, and that is by engaging in devotional service to Vasudeva or Krishna. Okay? Therefore, jnana or knowledge that one is not this material body but spirit soul is not sufficient for liberation. तो सिर्फ ये ज्ञान होना कि मैं ये भौतिक शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, this is not sufficient और this is not good. इससे आप मुक्त नहीं हो जाते. एक्शन भी तो होना चाहिए ना. We have to act also on the status of spirit soul. Just knowing, क्या सिर्फ ये जान लेने से, अब जैसे चोर को भी पता है कि चोरी करना पाप है, मगर फिर भी क्या जान लेने से वो बच जाता है क्या? Just knowing that चोरी करना पाप है, वो उस सजा से बच जाता है? No. He has to act also ना. जब तक वो उस पर कार्य नहीं करेगा कि नहीं भाई चोरी करना पाप है, मुझे नहीं करनी चाहिए, तो तब तक क्या उसको सजा मिलना बंद हो जाएगी? नहीं, वो जितनी बार चोरी करेगा उसको सजा मिलेगी. तो सिमिलरली वी माइट नो आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, और जब तक हम सोल प्लेटफॉर्म पे एक्ट नहीं करेंगे, डू वी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस एंटेंगलमेंट? नो. और एक्ट कैसे करना है? सर्व एज सर्वेंट ऑफ कृष्ण इन दैट वे. सो एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट हाउएवर एक्शन ऑन द फ्रूटिव प्लेटफॉर्म. तो जो भक्ति में कार्य होते हैं वो फ्रूटिव कार्य से अलग है. ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग मटेरियल वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस. Activities performed in full knowledge strengthens one's advancement in real knowledge. Without Krishna consciousness, mere renunciation of fruitive activities does not actually purify the heart of a conditioned soul. कि बिना कृष्ण कॉन्शियसनेस के सिर्फ कार्यों को त्याग कर देना आपके हृदय की शुद्धि नहीं करता है. दैट इज आर्टिफिशियल. वो आर्टिफिशियल माना जाता है एक तरह से. आपको वो हृदय शुद्ध नहीं ना करेगा. ठीक है, दैट विल नॉट हेल्प यू. तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मैचलेस गिफ्ट शॉप, जो मैचलेस गिफ्ट बुक था, उसमें पढ़ा था परीक्षित महाराज आज कि अटोनमेंट करना चाहिए हमें अपने पापों का. ठीक है, मतलब प्रायश्चित. तो प्रायश्चित तो कर लेते हैं, चलो सजा काट के आ गए. ठीक है, मगर जब तक हृदय की शुद्धि नहीं होगी हम लोग उस चीज से, जो हमारे बुरी कंडीशनिंग है उससे हम हट नहीं पाते. वी आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दैट. ठीक है, तो उस चीज से तो हम लोग नहीं निकल पाते. तो क्या बोला जाता है? So we have to purify our heart to get out of this our bad engagement from by root. तो वो शुद्ध हृदय होगा तभी हो पाएगा ना. तो similarly until our heart is pure or if it is just conditioned, so it's difficult to come out of this. जैसे सिर्फ कार्य को रिनाउंस करने से हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो जाता. They are tendency to again get into those things. This Mayavadis, they just leave everything. But there are tendency they come back again. और जैसे कई mystic yogis हैं, they just leave everything and they go to forest. But there are chances they again fall down to those activities. ठीक है, अभी हम लोग बहुत सारे उदाहरण देखे हैं उसके. So better is to engage in devotional service. Your heart will get purified. You will get detached from all the material activities. So as long as the heart is not purified, one has to walk on the fruitive platform. But action in Krishna consciousness automatically help one escape the result of fruitive action, so that one need to descend to the material, no need to descend to the material platform. Therefore action in Krishna consciousness is always superior to renunciation. इसीलिए जो भक्ति में कार्य है वो renunciation से हमेशा superior है, which always entails the risk of falling. क्योंकि renunciation, अब जैसे विश्वामित्र मुनि का कहानी है, ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के तो जंगल चले गए थोड़ा काम करने के लिए, है ना, मतलब सॉरी भक्ति योगा परफॉर्म करने के लिए. और when the Menaka comes, he falls down. क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है ना, अभी कहीं ना कहीं आसक्तियां तो है ही है, तो ये फॉल्स डाउन. मगर जो भक्त है अगर वो भक्ति में लगा रहता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है, उसके हृदय अपने शुद्ध हो जाता है और ये सारी चीजें निकल जाती हैं. तो और जैसे मायावादी इसका मैंने बोला फॉल डाउन होता है उनका, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है. सो बेटर टू एंगेज इन डिवोशनल सर्विस. ठीक है, सो रिनाउंसिएशन विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इनकम्प्लीट. सो जो रिनाउंसिएशन है वो बिना भक्ति की क्या है? इनकम्प्लीट है. भक्ति रसामृत सिंधु में
रूप गोस्वामी बताते हैं क्या बोला उन्होंने। प्रपंचिकत्या बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः प्रतियागो वैराग्यं फाल्गुकथ्यते। When person eager to achieve liberation renounce things related to the Supreme Personality of Godhead, thinking them to be material, their renunciation is called incomplete. क्या बोला है? When person eager to achieve liberation renounce things related to the Supreme Personality of Godhead, thinking them to be material, their renunciation is called incomplete. तो वो सोचते हैं कोई भी भगवान की चीजें हैं, भगवान की दी हुई, सोचते हैं ये तो माया है, छोड़ दो, वो फॉल्स रिनंसिएशन है। जैसे मायावादी था सब माया छोड़ दो। अब जैसे लैपटॉप भी है, ये भी कंसिडर देखा जाए तो माया है ना, इसको भगवान से क्या लेना है, बट वी आर यूजिंग इन कृष्णा सर्विस। सो दिस इज रिनंसिएशन, दिस इज नॉट आर्टिफिशियल रिनंसिएशन, दिस इज वी आर यूजिंग द थिंग्स इन कृष्णा सर्विस। लाइक प्रभुपाद ने हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की है भगवान की सेवा में। अब देखा जाए सन्यासी का मॉडर्न टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना, तो प्रभुपाद इज यूज। तो आप जैसे डिक्टाफोन रिकॉर्डिंग के लिए यूज करना, ठीक है, एयरप्लेन यूज सन्यासी को फ्लाइट नहीं, ऐसे समुद्र क्रॉस नहीं करना चाहिए, बट यूज एयरप्लेन, ट्रेवल्ड इन एयरप्लेन, ठीक है। So because that is for higher purpose, to spread Krishna consciousness. So that is true renunciation. The utilizing everything in Krishna's service. So that is true. Otherwise, other things are that is what we call it artificial. Please come again. ये meeting खत्म हो रहा है, so please come again. I will start session. थोड़ा ही रहता है, then we'll be finishing up. Okay. तो क्या बोले यहाँ पे, so renunciation is that is incomplete, ठीक है। तो without Krishna consciousness renunciation is incomplete, ठीक है। so क्या बोला है आगे, yeah. So renunciation is complete when it is in the knowledge that everything in existing belongs to the Lord and that no one should claim proprietorship over anything, ठीक है। सही ज्ञान क्या है, renunciation complete तब होता है जब जितनी भी चीजें हमें पता चलता है भगवान से बिलोंग करते हैं, उनको भगवान की सेवा में लगाया जाए, ठीक है, that we are not the proprietor. So one should understand that factually nothing belongs to anyone. Then where is the question of renunciation? One who knows that everything is Krishna's property is always situated in renunciation. Since everything belongs to Krishna, everything should be employed in the service of Krishna. This perfect form of action in Krishna consciousness is far better than any amount of artificial renunciation by a sannyasi of the Mayavadi school. क्या लिखे? One who knows that everything is Krishna's property is always situated in renunciation. जब इंसान को समझ में आता है कि सारी चीजें भगवान की हैं और उन्हीं की सेवा के इस्तेमाल होने चाहिए, that is true renunciation. Means not using anything for one's own sense gratification. ठीक है? Since everything belongs to Krishna, everything should be employed in the service of Krishna. अब सब कुछ भगवान का है तो भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए. So this perfect form of action in Krishna consciousness is far better than any amount of artificial renunciation by sannyasi of the Mayavadi school. So इस चीज को समझ पाना, ये जो कार्य होते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, this is more better than the renunciation that Mayavadis follow. ठीक है? Did you all understand now? Renunciation of work is not superior, but action in Krishna consciousness is more superior than anything. So we have to work in Krishna consciousness rather than artificially renouncing everything. No. Everything has its utility and if it is used in Krishna service, that is perfect knowledge. ठीक है? So we will आज इतना ही चर्चा करेंगे. So any of you having any questions or comments, so you can ask. So I can take up something or anything you would like to add up. Yes. अगर कोई कुछ ऐड करना चाहे या बोलना चाहे तो बोल सकते हैं. Yes. Any question asked and Komal or anything you want to add up? No questions, Mataji. Okay. समझ में आया आज का आस्था? हाँ हाँ. What about Komal? आपको आया समझ में बच्चे? Okay. Okay, then we'll be stopping here. Third shloka हम लोग कर लेंगे, ठीक है? And tomorrow we are starting the third shloka of Bhagavatam also. देखो भगवद गीता भागवतम साथ third shloka है. So tomorrow we are studying the third shloka. Okay, then we'll end it. Let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ऑल द समाज की जय. Thank you so much. See you all tomorrow for Bhagavatam class. Hare Krishna.